ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ 7:15 ਵਜੇ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 6 ਦੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ AGTF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ रमजान खान उर्फ राज हुड्डा, जिस दे पैर दे विच 2 गोलियां लगियां ते उसनूं फिर उस तो बाद काबू कर लिया गया। हस्पताल दे विच ले जाया गया, जेरे इलाज है, खतरे तो बाहर है और फिलहाल पुलिस दी कस्टडी दे विच भी है। हस्पताल दे विच लाजमी तौर ते पुलिस दीयां टीमां होणगीਆਂ और इस पूरी घटना ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, AGTF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ 6 ਦੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਤੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਦਾ, ਜੀਤੂ ਦਾ, ਤੇ 2 ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਬੂ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਿਆ ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 570 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਈ, ਰਿਡਜ਼ ਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ, ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਔਰ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ AGTF ਚੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਟਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਵੀ ਵਰ ਔਨ ਹਿਸ ਟ੍ਰੇਲ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਹਿਮ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੂ ਸਮ ਪਾਰਟਸ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ। So he was located there। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, and he resisted arrest and there was a brief encounter in which he is injured, but now he has been arrested। ਸਰ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਇਕੱਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ? ਸੀ ਉੱਥੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਾਂਟਡ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ। ਜੀ ਸਰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਪਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ? I told you that ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, he had a weapon। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ? ਦੇਖिए ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। अजय इस वक्त मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकता। अजय तो ये आधा घंटा पहले सारा काम होया जी, तो बाद इसकी क्वेश्चनिंग होगी, सारी डिटेल्स भी तुहाडे नाल बात शेयर करांगे जी। ते ये पंजाब लेके आ रही है टीम? His medical will be done if the medical team allows him to, depending upon कि जरा दा ट्रीटमेंट वगैरह होना है उस तो बाद डिसीजन विल बी टेकन जी। और ये जॉइंट ऑपरेशन किया जावे सर कि पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस दा? हाँ जी और सेंट्रल एजेंसीज भी विच इन्वॉल्व सीगियां ते कोऑर्डिनेशन दे नाल होया है। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ
ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2-2.25 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। और रुक करते हैं साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं, होर इन्फॉर्मेशन लैण दी कोशिश करांगे। चंडीगढ़ तो लैके फरीदकोट तक की कुछ हलचल इस समय नजर आ रही है। फरीदकोट जिथे इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया सी, कोटपुरा दे विच डेरा प्रेमी का कतल किया गया सी। नरेश सेठी उत्थों साडे सहयोगी साडे नाल ने, ते चंडीगढ़ दे विच इस समय की कुछ हलचल है। मनोज राठी उत्थों साडे सहयोगी साडे नाल ने। मैं रुक करदा पहला नरेश सेठी दा। नरेश, 10 तरीक नूं घटना वापरदी है, 6 शूटर घटना नूं अंजाम दिंदे ने, 10 दिनां दे अंदर 6 दे 6 शूटर गिरफ्तार कर लए गए। की कुछ तुहाडे कोल इस समय जानकारी? कोटकपुरा पुलिस लाजमी तौर पर इस समय जरूर थोड़ा राहत महसूस कर रही होगी कि 10 दिनों के 6 दे 6 शूटर पुलिस के शिकंजे दे विच ने। बिल्कुल गौरव दसदी है कि जो 2 मॉड्यूल काम किए थे, जिस विच 4 शूटर जो हरियाणा के और 2 शूटर जो फरीदकोट के दसे जा रहे थे, तो हुण एक जी 6वां शूटर जो कि हाले तक फरार सी, उसकी भी अज जी गिरफ्तारी जयपुर तो हो चुकी है। तो इसके बाद गल करिए तो पूरे केस को जो एक मुकम्मल तौर पर जो हल करने की जी गल पंजाब पुलिस वालों कही जा रही है। और इस तो इलावा जो गल करिए तो 2 दिन पहला जो मनप्रीत मनी ते भुपिंदर सिंह गोल्डी, इन्होंने दोवां की जी गिरफ्तारी हुशियारपुर तो हुई सी। तो उस तो बाद कई तरह के बड़े खुलासे भी सामने आए सी। उस विच गल करिए मुख्य तौर पर तो जैतो के 2 व्यक्ति विक्की चौहान और इसके नाल स्वर्ण सिंह, 2 व्यक्तियों की जी गिरफ्तारी हुई सी। और इन्हां ते इल्जाम सी कि इन्हां वल्लों ही जिहड़ा रिट्स कार आपदी जिहड़ी वरती गई सी और इन्हां नूं जिहड़े शूटरां नूं लॉजिस्टिक हैल्प जिहड़ी मुहैया कराई सी। तो उन्हां दोवां की गिरफ्तारी तो बाद जिहड़ी एक जिहड़ी कार जिहड़ी वरती गई सी, उस कार के जरिए ही घटनाक्रम तो बाद 3 शूटरां जिस विच राज हुड्डा, मनप्रीत मनी और भुपिंदर गोल्डी, इन्हां तिन्नां नूं जिहड़े अगली मंजिल तक जिहड़ा उस रिट्स कार के जरिए पहुंचाया गया सी। तो उस रिट्स कार नूं जिहड़ा हुण पुलिस वालों कब्जे च लै लिया गया। इस तो बाद जिहड़े हुण पुलिस वालों जिहड़ी हुण जानकारी सामने आई है कि जिहड़े 2 व्यक्ति जैतो के रहने वाले ने, विक्की चौहान और स्वर्ण सिंह, इन्हां वल्लों जिहड़ी शूटरां दी हैल्प की गई सी, उन्हां नूं रहण दे सहण दा, उन्हां दे खाण पीण दा सारा इंतजाम जिहड़ा इन्हां दोनां वल्लों कीता गया सी। तो उन्हां दी भी नाल जिहड़ी गिरफ्तारी हुई। दूसरी वड्डी जिहड़ी एक जानकारी जिहड़ी पुलिस ने इस वक्त साझी की है कि फरीदकोट की जेल विच बंद भोला सिंह खालसा नामक एक व्यक्ति नूं इस केस विच नामजद किया है। और उसका की संबंध है इस केस नाल, वो असीं जानकारी जरूर दसांगे कि मनप्रीत मनी जिहड़ा कि इस केस विच शूटर के तौर पर वरत्या गया सीगा, और मनप्रीत मनी का जीजा भोला खालसा फरीदकोट की मॉडर्न जेल विच बंद है और उसते कतल का एक केस जिहा चल रहा है। और इस तो इलावा शक्ति सिंह जिहड़ा डेरा प्रेमी है, उसते घर दे उत्ते भी रेकी करन दा जिहड़े इल्जाम उसते लगे सी, उसनूं लैके भी जिहड़ा उस मामले विच नामजद है। तो किते ना किते भोला सिंह खालसा की एक अहम जिहड़ी रोल इस केस विच सामने आया सीगा कि उसने जेल विच बैठे ही हरजिंदर सिंह राजू, जिहड़ा कि वो भी फरीदकोट जेल अंदर बंद है, जिसका कि गोल्डी बराड़ नाल सीधा संबंध सी। तो इन्हां दोवां दी जिहड़ी मिली भुगत दे बाद ही जिहड़ा भुपिंदर सिंह गोल्डी ते मनप्रीत मनी का जिहड़ा राबता जिहड़ा काम कराया गया गोल्डी बराड़ नाल। उस तो बाद गोल्डी बराड़ वालों जिहड़ा इन्हां नूं काम सौंपिया गया सी, उसी रेकी करन दा। और इन्हां दोवां शूटरां वालों जिहड़ा फरीदकोट के शूटर जिन्हां दी हुशियारपुर तो गिरफ्तारी हुई सी, तो इन्हां दोवां शूटरां वालों प्रदीप कुमार राजू डेरा प्रेमी की जिहड़ी रेकी की गई। उस तो बाद जिहड़े हरियाणा तो 4 जिहड़े शूटर आए सी, उन्हां दी मदद की गई और उन्हां दी मदद दे नाल ही जिहड़ा प्रदीप कुमार की जिहड़ी हत्या की गई सी। और हत्या तो बाद ही ये जिहड़े सारे शूटर इत्थों फरार हो गए सी। और दूसरी गल, जिहड़े मोटरसाइकिल इन्हां वल्लों वरते गए सी, जिहड़ा हरियाणा नंबर का मोटरसाइकिल जिहड़ा मौके ते छड्ड के गए सी, पुलिस वालों उसकी भी जानकारी दी कि वो मोटरसाइकिल जिहड़ा चोरी दा सी। और इस तो इलावा जिहड़े बाजा खाना कोल जिहड़े 2 मोटरसाइकिल छड्डे गए सी, उन्हां विचों एक मोटरसाइकिल मनप्रीत मनी दा सी और दूसरा मोटरसाइकिल जिसकी कि हजे जांच चल रही है उसके, क्योंकि चैसी नंबर और इंजन नंबर काफी जिहड़ा उसका मिटा चुके सी, तो इस करके उस मोटरसाइकिल की पहचान नहीं हुई। पर इन्ना जरूर दस्सिया जा रहा है कि किते ना किते वो भी जिहड़ा मोटरसाइकिल इन्हां वल्लों जिहड़ा चोरी दा वरत्या गया सी। तो इस सारियां जिहड़ियां कड़ियां एक दे बाद जिहड़ियां जुड़दियां गईयां। तो इस सब दे बाद जिहड़ा पुलिस वालों वेरीफाई किया गया कि इस सारी घटना नूं अंजाम देण पिछे गोल्डी बराड़ दा मुख हत्थ सी, क्योंकि भोला सिंह खालसा दे नाल हरजिंदर सिंह राजू जिहड़े दोनों बैठे जेल च इस साजिश नूं जिहड़ा घटना नूं जिहड़ा प्लान करदे ने। उस तो बाद गोल्डी बराड़ नाल जिहड़ा राबता कायम कराया जांदा है ते किते ना किते कड़ियां सारियां आपस विच जुड़ के इस सारी घटना नूं अंजाम दिता गया। और इस घटना नूं अंजाम देण दे पिछे मुख जिहड़ा दिमाग चल रहा सी, वो सी गोल्डी बराड़ जिहड़ा कि विदेश विच बैठा जिहड़ा इस सारी घटनाक्रम की प्लानिंग कर रहा सी। और उसे वल्लों ही जिहड़े 4 शूटर हरियाणा दे सी वो प्रोवाइड कराए गए और उन्हां शूटरां वल्लों
ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ 6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ घटना वाली थान का जिथे एनकाउंटर पूरा अंजाम दिता गया। को पनाह देने का काम जयपुर में हुआ है, तो जयपुर पुलिस के भी ये चुनौती होगी कि ऐसे जो बदमाश उनको खोज निकाले। जी ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਰਾਮਨਗਰ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ AGDF ਦੀ ਟੀਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ सेंट्रल एजेंसियां पहुंची हुई सी और इस समय चैलेंज जो साडे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, एक चैलेंज लाजमी तौर पे राजस्थान पुलिस के लिए भी है कि जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस के लिए चैलेंज होगा कि राज हुड्डा को जयपुर में पनाह किसने दी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। जिस जगह वो छुपा हुआ था वो फ्लैट किनका होगा, कौन से अपार्टमेंट में था, ये कई सवालों के जवाब जो है वो कुछ देर में आना बाकी है। क्योंकि अभी हम फिलहाल SMS हॉस्पिटल में मौजूद है, चूंकि हमारी सूचना भी यही थी कि राज हुड्डा को अब यहीं पर लाया जा रहा है, तो जल्द से जल्द पुलिस की टीमें राज हुड्डा को लेकर के जयपुर के ट्रॉमा हॉस्पिटल में पहुंचेगी, यहाँ उपचार होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिद्धू मूसावाला जो कि पंजाब का ख्यात नाम सिंगर था, उसके हत्याकांड के बाद भी ये सामने आया था कि पंजाब के कई बदमाश और राजस्थान के कई बदमाश इस हत्याकांड में शामिल थे। ऐसे में राजस्थान के 2 से 3 बदमाशों को पंजाब की पुलिस ने भांकरोटा इलाके से पकड़ा। उसके अलावा बीकानेर के कुछ हार्डकोर बदमाश थे, ये भी सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में सामने आए थे। तो देखिए एक एम्बुलेंस अभी तक यहाँ पे सामने हो सकता है कि इसमें ही राज हुड्डा हो। तो देखिए तो देखिए जल्द से जल्द राज हुड्डा को यहाँ पर लाया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको SMS हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस मौके पर मौजूद है। सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम है यहाँ पर किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द इंतजार है कि राज हुड्डा यहाँ पर आए, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को दिखाएं। जी ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 2 ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਬੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो मुठभेड़ तो बाद शूटर राज हुड्डा एक साधारण आदमी होता तो अब तक यहाँ पर पहुंच चुका होता, लेकिन चूंकि सुरक्षा के इंतजाम वहाँ पे कड़े करने होंगे, जवान वहाँ पे मौके पर मौजूद है, तो ऐसे में पुलिस के एस्कॉर्ट के बीच में राज हुड्डा को सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर में लाने की बात की जा रही है। जी ਤਾਂ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ और पुलिस की कस्टडी दे विच है, तो ट्रीटमेंट लाजमी तौर पे उसका करवाया जाएगा। और ये उसका सवाल था कि राजस्थान में आराम से, राजस्थान हार्डकोर बदमाशों की शरण स्थल है। बाहर के अन्य राज्यों के बदमाश बहुत आसानी के साथ राजस्थान में आते हैं और यहाँ पर पनाह लेते हैं, यहाँ पर उनकी शरणगाह बनती है। यहाँ के स्थानीय जो बदमाश हैं, जो बड़े गिरोह हैं, वो इनको शरण देते हैं। तो ऐसे में न्यूज 18 का सवाल यहाँ पे एक बार फिर से पुख्ता होता है कि हार्डकोर क्रिमिनल पंजाब छोड़ करके जयपुर में फरारी काट रहा था, लेकिन DGP का उसमें राजस्थान की मतलब न्यूज 18 राजस्थान को उनका जवाब था कि हमारी और स्टेट की जो पुलिस है उनके बीच में लगातार गोपनीय मीटिंग्स होती है, जिनमें हम सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं कि कौन से राज्य का कौन सा मुलजिम किस राज्य में छुपा हुआ है, उसी के आधार पर ऑपरेशन भी किए जाते हैं। तो ऐसे में आज वापस से एक बार ये बात पुख्ता हो गई कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और कई अन्य बदमाशों के हार्डकोर बदमाशों की शरणगाह है राजस्थान बना हुआ है। खासतौर पर जयपुर और शेखावटी के कई अंचल के इलाके,
ये इनके छुपने की जगह बने हुए हैं। तो ऐसे में राजस्थान पुलिस के लिए चैलेंज होगा कि इन बदमाशों को खोज निकाले या फिर वारदातों के बाद में पंजाब सीमावर्ती जिलों से होकर के और बदमाश जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो उनको किसी भी तरीके से रोका जाए। तो ऐसे में अब जयपुर की पुलिस ये तलाश करेगी, जयपुर की पुलिस ये उसके लिए चुनौती होगी कि इसको पनाह देने में कौन कौन से बदमाशों का रोल रहा है, वो बदमाश कौन है, जल्द ही जयपुर पुलिस इसका खुलासा करेगी। जी ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟर्स अलाउ करनगे तो उस तो बाद ही पंजाब शिफ्ट। तो हमेशा राजस्थान में सवाल खड़े होते हैं, एनकाउंटर पे सवाल खड़े होते हैं। राजस्थान की पुलिस घेरों में खड़ी होती है, ऐसे में राजस्थान की पुलिस हमेशा एनकाउंटर करने से बचती है, आत्मरक्षा में फायरिंग करने से बचती है। चूंकि पिछले कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जबकि राजस्थान पुलिस ने किसी बदमाश को काबू में करने के लिए फायरिंग की हो, उसका पीछा किया हो, लेकिन जब कभी ऐसी फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ तो हमेशा राजस्थान पुलिस के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए, राजनीतिक दबाव में सरकारें आई और इसी वजह से शायद हो सकता है कि राजस्थान की पुलिस एनकाउंटर करने से बचती है, आत्मरक्षा में फायरिंग करने से राजस्थान पुलिस बचती है। और इसीलिए इसी का फायदा उठाते हुए राजस्थान में बहुत आसानी के साथ में यूपी, हरियाणा, पंजाब के हार्डकोर जो गैंगस्टर्स हैं, बदमाश हैं, वो राजस्थान में आते हैं, जयपुर में पनाह लेते हैं, अन्य जिलों में पनाह लेते हैं और राजस्थान पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठने को मजबूर होती है। लेकिन वहीं पर यदि बात करें यूपी पुलिस की, पंजाब पुलिस की, हरियाणा पुलिस की, तो वो बदमाश का पीछा करते हुए एनकाउंटर करने में या फायरिंग करने में कोई मौका नहीं छोड़ती, बदमाश को ढेर कर देती है। यही पुलिस अंतर राजस्थान और अन्य जिलों की पुलिस में, चूंकि राजनीतिक दबाव काफी सारे होते हैं, कई जातिगत सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में जाकर के राजस्थान पुलिस हमेशा के एनकाउंटर घेरों में आते हैं और राजस्थान पुलिस इन एनकाउंटर को करने से बचती है। जी